Please start the floor. We have to wait or start? Start, sir. Okay, thank you, dear learner. You are welcome, and today we are going to start your paper 6. And paper 6, it's very important for you all. This is complete mathematical and it needs practice. So, for you, I would like to share that in this paper, you'll get the maximum scoring if you know the concepts clearly, and if you don't know the concepts, automatically you go to the zero also. So in statistics, basically, there are two possibilities in the exam. 50% theory portion will be there, 50% mathematical portion will be there. So if the people who are not comfortable in mathematics, they can go for theoretical portion to complete. This up to you to decide how to go. But this paper 5, I think this might be finished. You might enrich yourself in paper 5 and paper 6. These are compulsory paper for to enable you to write your project in your MA2. Until or unless you don't have qualifying this exam for paper 5 and paper 6, you can write your you cannot write your project. So paper 5 and paper 6 is most important to enable you to go for project writing in your MA2. So please be attentive. In this paper, we'll go little explanation about the concepts in statistics. Why? Initially, there was the concepts when there was only mathematical statistics. Stat was there, only mathematical. Sorry to disturb you in between, sir. Hello. Yes, yes. Yes. So few students are not able to join. They are saying that nobody is accepting their request, and they are sending the message in the WhatsApp group. So, in case we can wait for 2-3 minutes more. मनप्रीत वो गलत लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, उनको लिंक शेयर करिए प्लीज. Yes, sir. हाँ जी. जो लिंक है वो Let लिंक them पे join and will. Yeah. बोलो सर, देखिए, बोलो. और बच्चों ने भी तो ज्वाइन किया ही है ना, आप लोगों ने भी ज्वाइन किया है. नहीं सर, मेरे को भी ना इनिशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, बट उसके बाद ठीक हो गया. Maybe that could be the reason, but I just wanted to help them because उसमें उनकी ना आ रही थी कि नहीं कर पा रहे हैं. मनप्रीत, आप ये लिंक को शेयर करिए जो मैंने अभी डाला चैट बॉक्स में. जी सर, मैं अभी कर देती हूँ. Secondly, I'll let you know one thing. There might be possibility for network problem, right? When you join, other people join. Almost this 29 people join, for 20 people join. So there is some possibilities of network problem. Maybe, Let them sir, join maybe. and we carry on our class. Right, sir. Thank you so much. Right? Sir. Okay. Yes. So initially in statistics, if we discuss, there was a mathematical statistics only. But due to the evolution of time in social sciences, now you see there is an SPSS is there, right? So when social sciences is also started to use statistics for the analysis or the evaluation of their findings or the research, so it means statistical science or statistics is not just related to mathematics only right now. It's become an integral part of medical, art, science, commerce, everywhere, right? So statistics particularly help you to understand the relations between two variables, three variables, more than two variables, right? Five variables, whatever the relations you would like to study. Accordingly, with the help of statistics, we measure psychological characteristics of people by using varieties of psychological tests and psychological scales. Right. I don't want to go in detail, but I would like to hint you here. You must learn and understand the concepts of psychological test, psychological scales, psychological inventories, and psychological questionnaire. You must understand the concepts of these four, right? And compare all these four where they are little different from each other, right? I'm not going this big because this is not my topic to discuss right now. And we
go for psychological characteristics to assess with the help of psychological tests, scales, questionnaire, inventories, whatever. Right. So suppose if you increase one component or one variable in your attributes, so it directly impact your second attribute of your behavior or personality. So that means one component or one variable is influencing you, and second is automatically influencing directly. That means I am referring specifically here the manipulations of the variables. Statistics helps you to understand, you to analyze, you to evaluate the statistics in terms of मैनिपुलेशंस ऑफ वेरिएबल्स. दैट इज, अगर मैं लेमन की भाषा में बात करूं, यहाँ पे एक कॉज एंड इफेक्ट होता है, एक लेमन की बात करें, राइट. Similarly, independent and variable, dependent variable, if psychologically we'll talk, layman cause and effect, stimulus and response, for example. So that layman concepts or dependent variable automatically influence our results, interpret personality or behavior, whatever, right? So if, for example, one is pessimistic about his life, I am just giving you example of stimulus and response. One is pessimistic about his life, he or she will be less happy, right? If one is pessimistic about life, he or she will be less. That means pessimistic level of your behavior, personality is decreasing. So it influencing your another component of your attribute of your personality or behavior. That means directly they are internally connected, and statistics help you to understand the degree of influence of one variable on the another variable. The degree, I'm telling you, frequency, degree, right? So this means there is an interpretations or the statement or the study or the explanation with the help of relationship of two variables or more than two variables, right? Statistics is a science that deals with collections, analysis, and interpretation of numerical information. So I told you it is a little mathematical component consisting in this statistical. But this is a collection, analysis, and interpretation of numerical informations. Initially, you go for data collection, आपके collection हो गया, then you to analyze, and then you to interpret, right? To make it theoretical structure available, non-mathematicians interpretive disciplines has been developed called general statistics. If we go beyond far from mathematical statistics, it is our general statistics, in which presentation is greatly simplified and often non-mathematical, right? We use non-mathematical usually terms in this one. So basically this science of statistics can be divided into two areas: descriptive statistics and the inferential statistics. Descriptive statistics are provided for processing raw material into your usable form. Raw material you are having, that means we usually use our descriptive statistics in our psychology, right? When we have raw material, that means you collected one data from the field, that is raw material, and then you process that data to analyze and interpret. And inferential statistics, for example, the weather forecast, for example, the people calculate many things. Inferential, when we go for inferences, and in psychology usually we don't go for inferences. Basically we go for interpretation of data with the help of descriptive statistics. So this is the technique provided processing raw material to usable form. The technique includes methods for collecting, organizing, summarizing, describing, presenting, many things are there. The complete group, one thing और यहाँ पे एक और चीज मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा. हम जब कलेक्शंस करते हैं तो we have a sample, right? Population, we call it a population, right? But in psychology we may call it a sample also, right? सॉरी प्लीज, तो मेरे से मैसेज नहीं हो रहा आपको कोई भी? आप एक बार शांत करेंगे, सुनाई दे रहा आपको कुछ? सुनाई तो दे रहा है ना? हाँ जी. मैसेज क्या करना चाह रहे हैं आप? हेलो सर, मैं व्हाट्सएप नंबर सेंड करना है ताकि मुझे जो पुराने वीडियो भी और नए वीडियो भी मिल जाए, क्योंकि मिस हो गए आप एक बात करिए, मेरी सुनिए आप. Please, all the learner, I am requesting you stop this habit to messaging in between the lecture. Okay, thank you, sir. Thank you. This is my request to all the learner. And I don't tolerate all these things being the coordinator. You are to support. We are teaching you in a regular class mode.
We're not teaching you, we are not taking a counseling session only. I'm being a coordinator, I'm not digesting all these things from all. We need this support from you people. You're not school going learner, and you are mature enough. You may be more than my positions there in your professional areas, but you being a student, you are to support the teachers to go properly. जब हम लेक्चर खत्म करते हैं उस टाइम हम आपका क्वेश्चन आंसर का एक सेशन लेते हैं, जितनी देर के लिए होता है। ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस करनी होती है। ये हैबिट छोड़ दो, और थैंक्स करना लेक्चर के लिए, अच्छा लगा, ये लगा, वहां पे कुछ एक एटिकेट होता है किसी को, अगर आपने किसी को थैंक्स करना है तो, राइट, देयर आर सर्टेन एटिकेट्स। सो माय रिक्वेस्ट इज यू टू सपोर्ट। मेरी सिर्फ आपसे प्रार्थना है, आप सभी बड़े हैं, मैच्योर हैं, अच्छे हैं, स्कूल के बच्चे नहीं है। सो कृपया करके जो लेक्चर चल रहा है उसको बीच में इंटरप्ट ना करें, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से। अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो हम भी फिर इंटरप्शन हो करके ही पढ़ाएंगे आप लोगों को। वी आर नॉट टेकिंग इट एज ए काउंसलिंग ओनली, वी आर टेकिंग इट जैसे हम अपने रेगुलर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम आपको कोशिश करते हैं पढ़ाने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट। बट दिस इज नॉट द रेगुलर मोड ऑफ टीचिंग, दिस इज ए ऑडियल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड है हमारा ये। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको कोई दो चीज फालतू बता दें हम, राइट। सो यू बीइंग मैच्योर, काफी रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, कुछ तो उम्र में ही बड़े होंगे, छोटे होंगे, प्रोफेशन में ही मेरे से बड़े होंगे, जो भी होगा, पर थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, ग्रुप को अच्छे तरीके से चलने दे, ताकि आपकी सपोर्ट मिलेगी तो हम थोड़ा सा और अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे। हरदीप जी, ये कोई अर्जेंसी नहीं था कि मैसेज नहीं जा रहा है, इट्स नॉट अर्जेंसी, एम आई राइट? हेलो हेलो, hello, if you will not reply, I will not continue my class then. Please continue, Dr. Sir. कंटिन्यू सर, सॉरी। सॉरी नहीं है भाई, थोड़ा सा अर्जेंसी देखो बस, और कुछ नहीं है। एनीवे, सो inferential statistics, I told you the descriptive statistics and the inferential statistics. When we have a small segment of the group, small sample होगा, and techniques are required for making generalization and decision about the entire population. Small sample का मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। सपोज दूध आप घर में लेते हैं, दूध वाला आता है, जब ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है, एक दूध का एक थोड़ा सा 50 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम का सैंपल लेता है 100 किलो में से, और उस सैंपल में से बता देता है 10 ग्राम 20 ग्राम लेकर के 100 किलो को कि इसमें कितने % पानी मिला होगा। दैट इज ए स्मॉल सैंपल। इसीलिए हम साइकोलॉजी में भी हम स्मॉल सैंपल लेते हैं। सपोज यू वांट टू स्टडी एंजाइटी एंड डिप्रेशन अमंग एडोलेसेंट्स इन चंडीगढ़। एडोलेसेंट चंडीगढ़ तो 1 लाख है फॉर एग्जांपल। 1 लाख को सबको मैं नहीं रिप्रेजेंट करूंगा, कलेक्ट करूंगा डाटा। आई विल टेक 100 200 300 400 मैक्सिमम, राइट। और उसी के बेस पे, स्मॉल सैंपल के बेसिस पे मैं जनरलाइज कर सकता हूं चीजों को, क्योंकि वो चीजें मैंने रैंडमली ली है। जो भी एडोलेसेंट मिल गया रैंडमली सिलेक्ट किया मैंने, एंड दैट 100 पीपल रिप्रेजेंट द कंप्लीट 1 लाख एडोलेसेंट्स ऑफ चंडीगढ़, राइट। सो मैंने दूध वाला जो एग्जांपल दिया है वो एक फिट एग्जांपल है यहाँ पे, कि आप एक स्मॉल पॉपुलेशंस को लेकर के, स्मॉल सैंपल को लेकर के यू गो फॉर जनरलाइजेशन आल्सो। और एक और चीज बता रहा हूं, टेस्ट जब भी कोई साइकोलॉजी में बनाते हैं, स्टैटिस्टिकल कंपोनेंट है उसमें, इसलिए बताना चाह रहा हूं, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। दैट इज टू बी स्टैंडर्डाइज्ड, जनरलाइज्ड, राइट। स्टैंडर्डाइज्ड और जनरलाइज्ड टेस्ट वो होते हैं जो आम पब्लिक पे कल्चर फ्री होके, मान लो एक टेस्ट अमेरिका में बनाया है, अमेरिका की कल्चर अलग है, इंडिया की कल्चर अलग है, वो तभी हम इंडिया में लागू कर सकते हैं उसी सेम पॉपुलेशन पे जब वो टेस्ट कल्चर फेयर होगा, कल्चर फ्री होगा, जनरलाइज्ड होगा, रिलायबल होगा, वैलिड होगा, राइट। सो वी आर from the help of a small sample, and this is called your inferential statistics, right। inferential statistics का जब हम छोटा सा सैंपल लेते हैं, उस सैंपल के बेस पे हम जब एक जनरलाइजेशन करते हैं, राइट। सो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बाद यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जब करते हैं, वहां पे टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स होती हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, राइट।
सो जब और आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, एक हाइपोथेसिस होती है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है that I am making one hypothesis means assumptions, forecast, assumptions, right? हम assume करते हैं कि एक प्रशंसा का परफॉर्मेंस पे, प्रेज का परफॉर्मेंस पे सकारात्मक असर पड़ता है, राइट? मैंने हरदीप की प्रशंसा करी तो उसका इसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगी वो प्रशंसा, राइट? लेकिन ये आपकी नल हाइपोथेसिस नहीं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस कब बनाएंगे? हम कहते हैं कि देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ प्रेज ऑन परफॉर्मेंस ऑफ हरदीप। Am I right? This is no, that is a null hypothesis, right? And there is no impact of performance, no impact of praise on performance. That is called null hypothesis. So null hypothesis is rejected when it is true. जब आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है और हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, सिग्निफिकेंट मिलते हैं 0.01 पे और 0.05 पे। व्हाट हैपन पिंकी जी? सब कर दिया मैंने, प्लीज कंटिन्यू। सो 0.01 या 0.05 पे जब आपका स्टैटिस्टिकल रिजल्ट जब आपके सिग्निफिकेंट होते हैं और दैट सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स इज अकॉर्डिंग टू योर हाइपोथेसिस। हमने हाइपोथेसिस बनाया था कि प्रशंसा प्रदीप की परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा, राइट? और हमें सेम रिजल्ट्स मिल गए हैं। सो दैट मींस आवर फाइंडिंग्स आर सपोर्टिव टू आवर हाइपोथेसिस, दैट इज हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, राइट? एक्सेप्टेबल है, हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंट है, हमारा प्रूव हो रहा है। दैट मींस if the null hypothesis is rejected, right? null hypothesis reject होता है when it is true कि प्रशंसा का प्रेस पे कोई असर नहीं होता और वो असर नहीं मिला स्टैटिस्टिक रिजल्ट के बाद। so that means our null hypothesis is significant, proved, so that means true, so we reject that. statistical है, ठीक होने के बाद रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, हाँ ये हो चुका है, we done that one, right? So a type 1 error is said to occur if the null hypothesis is not rejected. When it is false, type 2 error is to be occur there. दो गलतियां बता रहा हूं, 2 errors in our statistics, type 1 error and type 2 error. type 1 error जब कब होगा हमारा एनालिसिस में, डिस्कशन में? if the null hypothesis is rejected when it is true, right? This is called type 1 error. If the null hypothesis is not rejected when it is false, right? This is called your type 2 errors. The null hypothesis is that, for example, alcohol reduce body weight, for example. This is our hypothesis. This is an alternate hypothesis, for example. लेकिन अगर हम कहते हैं alcohol do not affect body weight, alcohol do not affect body weight, this is our null hypothesis, right? फिर हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक फिक्स मात्रा में अल्कोहल दे करके एक्सप्रेस करना पड़ता है कि अभी किसका वेट इंक्रीज हुआ, किसका वेट डिक्रीज हुआ है, राइट? अगर हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू निकलता, सच निकलता, हाँ अल्कोहल वेट रिड्यूस करता है, तो हम ऑटोमेटिकली वो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड योर टाइप 1 एरर, राइट? सो टाइप 1 एरर कब होता है? जब आपका null hypothesis is rejected when it is true, right? When your null hypothesis is not rejected when it is false. false होगा तो उसको हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज रिजेक्ट क्यों नहीं करेंगे? we can go for more studies कि वो प्रूव नहीं हुआ, रिजेक्ट इसलिए करना चाह रहे हैं कि प्रूव नहीं हुआ, we don't want to reject, right? So this is type 1 error in statistics and type 2 error in statistics, right? Now we have 1 and 2 tail test. 1 tail test, 2 tail test statistics में हम यूज करते हैं, right? So इसमें the test statistics is where mean is the value of the sample, right? So calculate p value if it is less than the value you have. So
Just hold on, just hold on. मेरा लाइट गड़बड़ कर रहा है. मेरी लाइट चली गई, इस करके थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. 2 मिनट होल्ड करना पड़ेगा आपको. नो प्रॉब्लम सर. कर रहा हूँ लाइट. आराम से. नहीं ऐड हो रहा, मोबाइल चल रहा सिर्फ. क्या चीज में दिक्कत आ रही है डॉक्टर साहब? सभी विद्यार्थी थोड़ी देर के लिए इंतजार करेंगे. हम प्रयास कर रहे हैं. हेलो सर, चंडीगढ़ जी सेंटर. जी सर बोलिए. व्हाट्सएप मैसेज सेंड नहीं हो रहा. मेरी रिक्वेस्ट थी कि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करूं और जितने भी जो कुछ क्लासेस मिस हो गई हैं मेरे से, जो ये हमारा विषय नहीं है. हेलो. हरदीप, ये हमारा विषय नहीं है. ये आपस में आप लोगों ने बना रखा है. आपस में चर्चा करनी पड़ेगी आपको. हमारी तरफ से कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है. ओके ओके क्षेत्रीय सर. आरसी रीजनल सेंटर कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाता. ओके सर, लेकिन मैं मैसेज भी अपना नंबर सेंड भी नहीं कर पा रहा हूँ. जो ग्रुप एडमिन है ना, जो हमारे क्लासेस के, उनको नंबर भी सेंड नहीं कर पा रहा हूँ. मैं मैसेज नहीं हो रहा मेरी तरफ से. जो मैं नंबर सेंड कर देता, मैंने फेल्ड आ रहा है मैसेज. मैं आपकी बात को नहीं समझ पा रहा हूँ. देखिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि हम व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं हैंडल करते हैं. जब मुझे जानकारी ही नहीं है कि आप लोगों ने क्या ग्रुप बनाया है, कौन एडमिन है. ओके सर, ओके सर, ओके. हाँ, ये रीजनल सेंटर मुझे बेस में लगा. इसकी कोई जानकारी नहीं है. ये आपस में सहयोग से बना हुआ व्हाट्सएप ग्रुप है. इसमें शायद मनप्रीत कुछ करना चाहेंगे क्या? मनप्रीत को आइडिया होगा क्योंकि वो मेंबर है. मनप्रीत, मुझे हेलो. सुन पा रहे हैं? हाँ प्लीज. सर इनको ना बोलो कि नंबर अपना जो है वो बता दें, मैं ऐड करवा देती हूँ. आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए और आपका नंबर ऐड कर लीजिएगा. नंबर नंबर मैं नोट करें. 98034. हरदीप हरदीप नहीं सुना करें प्लीज. चैट बॉक्स में डाल दीजिए, वो वहां से कॉपी कर लेंगे. सर, इनकी प्रॉब्लम पता है क्या आ हाँ. रही है कि ये ना हाँ. मैसेज हमारा जो अभी हम जिस पे पढ़ रहे हैं मीट पे ही, ये अपना मैसेज नहीं डाल पा रहे हैं उसमें. जैसे हम जहाँ पे गुड मॉर्निंग या अपने कमेंट्स डालते हैं ना, वो ओके ये मैसेज डाल नहीं पा रहे. इनकी यही प्रॉब्लम है. ओके 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 ओके. एक्चुअली ये सो दैट इज. बोल रहे हैं ना, इसलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा था इसी. जी जी जी. तो प्लीज एक बार. नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन प्लीज. कोई जी बात. जी. हरदीप बताइए. 98034. 98034 82 82 314. 314. 4. 9803482 314. हाँ जी. यस मैम, थैंक यू. जी, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप उसमें ऐड कर लीजिएगा अपने आप को. ओके मैम, थैंक यू. ठीक है, चलो, थैंक यू जी.
ओके 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 मनप्रीत, डॉक्टर साहब जी, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब सब ठीक है? प्लीज अनम्यूट, माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज सर। Okay. So, करूं शुरू? प्लीज कंटिन्यू डॉक्टर साहब। Okay. So statistics basically is a very typical, I'm telling you, type 1 error, type 2 error. एक लेमैन के लिए तो कुछ भी नहीं है इसका मीनिंग, हमारे लिए इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। I am repeating, I am requesting you to just understand type 1 error, type 2 error. ये this will help you to how to test your obtained results to check from the table given there. वो statistical results आपके significant है या नहीं है, वो हमने वहां पे देखना पड़ता है टेबल पे 0.05 पे 0.01 पे जो सिग्निफिकेंट है या नहीं उसको चेक करना पड़ता है। तो वहां पे आपको टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर के हिसाब से आपको हेल्प मिलता है चेक करने के लिए। अब आपकी डायरेक्टली आई एम गोइंग टू योर पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में, जो आपका पहला कंपोनेंट है, पहला आपका मॉड्यूल है पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में, राइट। सो बेसिकली नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स कवर्स on data belonging to any particular distribution. This is a distribution free method, right? What is your parametric and non-parametric test? So parametric सबसे पहले या पैरामीट्रिक पे जाऊं या बेसिक आपको क्लियर करूं, आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैट। इफ अगर मैं इसके हिसाब से जाता हूं तो पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक एलिमेंट के लिए बहुत ऊपर से जाने वाली चीज है। स्टैटिस्टिक्स में पहले सबसे पहले मीन, मोड, मीडियन, एसजी, देन टी, उसके बाद टी टेस्ट एंड पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक उसके बाद आता है। होपफुली आप लोगों को सबको मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना आता होगा, राइट। अगर नहीं आता है तो बेसिक और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो उसको निकालना शुरू करें, सीख लें आप लोग। वो सिंपल है, उस पर हम जाएंगे नहीं, लेकिन हम डायरेक्टली पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इसलिए शुरू कर रहा हूं कि आपके मॉड्यूल 1 का पार्ट है आपका ये। सो this have been grouped under parametric or non-parametric statistics. Statistical test used for normal distribution, and with the help of normal distribution we develop our assumptions. This is called distribution free test, and we rank the group. For example, आपने correlation निकालना है, correlation निकालना है, दो ग्रुप है आपके पास, कोरिलेशन निकालना है, एक प्रेज के स्कोर आपके पास है, एक परफॉर्मेंस के स्कोर आपके पास है, या एक स्पीड का है और एक टाइम है, दोनों चीज के स्कोर आपके पास। दोनों के स्कोर निकालने के बाद आपने उनके कोरिलेशन देखना है कि टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ती है, टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड घटती है, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग स्पीड इंक्रीज परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है। सिग्निफिकेंट कोरिलेशन निकालना उसके। तो आपके उसके बेसिस के बेस पे यू हैव two scores there in a normal distribution data, and we assume to known as distribution free test, and this is particularly about, we can say, chi-square or Spearman rank difference coefficient correlation. You use two scores there. In the chi-square is the name of test, name of method in statistics, and Spearman rank difference is a correlation method, right? So particularly इसके अंदर क्या होता है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फ्री मेथड होता है हमारा, राइट। सो दैट मींस देयर इज नो assumptions that the data has been taken from a normally distributed population. यहां पे हम assume नहीं करते हैं क्योंकि डाटा हमने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन से लिया है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन का मीनिंग यहाँ पे ये हो गया कि जो पॉपुलेशन है आपका नॉर्मल है, दो तरह की पॉपुलेशन है, क्लिनिकल पॉपुलेशन, एक नॉर्मल पॉपुलेशन। नॉर्मल पॉपुलेशन है, अब नॉर्मल पॉपुलेशन, हॉस्पिटलाइज्ड पॉपुलेशन लेना है, डिप्रेशन पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनको लेना है, या एक नॉर्मल पॉपुलेशन में डिप्रेशन चेक करना है, राइट। सो दो तरह का है, नॉर्मल पॉपुलेशन का हमने डाटा इकट्ठा किया है ये। सो इट मींस वी कैन नॉट गो फॉर normally distributed populations about the assumptions that data have been drawn from the normally distributed population, right? So this consists non-parametric statistical model inferences and statistical test, right? So model inferences and statistical test when we have normal population data, and in that way this means we have no assumptions. So non-parametric tests, these are based on rank of observation.
अब अगर हम आपको एक स्टैटिस्टिकल मेथड के हिसाब से एक सवाल निकलवाएं कि जो यहाँ पॉसिबल नहीं है, कि रैंक मेथड का मीनिंग क्या होता है। रैंकिंग करना पड़ता है, दो स्कोर्स आपके पास, एक परफॉर्मेंस के स्कोर है, एक आपके प्रेज के स्कोर है। मान लो 10 लोगों की प्रेज करी, 10 लोगों के परफॉर्मेंस स्कोर चेक किए, फिर हमने 10 लोगों के प्रेज किसकी कितनी करी, वहां पे रैंक दिया हमने, बहुत ज्यादा करी, कम करी, एवरेज करी। सो सबसे ज्यादा करी, दैट मीन ज्यादा परफॉर्मेंस पॉजिटिव है, राइट। सो दोनों पॉजिटिव है, सो हाईएस्ट द स्कोर, हाईएस्ट द परफॉर्मेंस, वो आपने उसको रैंक 1 देना है, राइट। अब यहाँ पे मेरे पास वो इज नॉट पॉसिबल कि मैं आपको स्टैटिस्टिकल सोल्व करके दिखाऊं, या आपने घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टैट का। सो एक दूसरा है, जो सपोज स्पीड और परफॉर्मेंस को लेते हैं, स्पीड एंड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मींस टाइम, जो कम से कम टाइम लेगा 2 किलोमीटर स्पीड पूरी करने में, वो फर्स्ट आएगा, राइट। वहां पे हमने नंबर रैंकिंग देना मिनिमम टाइम को। दोनों चीजें कंसीडर करो, एक जगह तो हम नंबर 1 रैंक नंबर 1 दे रहे हैं, जो हाई परफॉर्मेंस दे रहा है, जिसके हाईएस्ट स्कोर है, दैट इज हाईएस्ट स्कोर्स ऑन परफॉर्मेंस, दैट रैंक 1, राइट। और एक दूसरा रैंकिंग, दो रैंकिंग होती है, एक हमने हाईएस्ट स्कोर को रैंक देना है, एक मिनिमम स्कोर को रैंकिंग शुरू करनी है। दैट मींस स्पीड लिमिट हमने है, दैट स्पीड 2 किलोमीटर की स्पीड कितने टाइम में जो कवर करेगा, सबसे कम टाइम में जो कवर करेगा वो फर्स्ट आएगा। दैट मींस मिनिमम टाइम जिसने लिया उसको रैंक 1 देना हम। जब आप कोरिलेशन मेथड में, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड में जब आप रैंकिंग करते हैं, स्कोर स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, राइट, R1 और R2 निकालते हैं, दो स्कोर है, रैंक 1, रैंक 2। रैंक 1 related to group 1, rank 2 related to group 2, rank 1 related to praise, rank 2 related to your performance, rank 1 related to your speed, rank 1 related to your time, right? So R1 R2 निकालने के बाद उसका हम D निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। R1 और R2 में क्या डिफरेंस, राइट। सो R1 और R2 का D निकालने के बाद उसका फिर हम आगे जाके कोरिलेशन, उसके जो सिग्मा निकालते हैं, दैट इज उसको डी स्क्वायर करते हैं। डी स्क्वायर करने के बाद उसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के बेस पे उसको कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला मैं आपको अभी बता रहा हूं। सो बेसिकली कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको इसको आएगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट बता सकता हूँ। Statistical calculation is not possible in our at this part, right? So non-parametric statistics based on your rank of observation, right? So no assumptions on the basis of the structure of model. Particularly we have structure of model आपके पास है, that is structure of model that means the sampling, general population sample आपने लिया है। So इसमें जो हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो यूज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन नॉट अज्यूम दैट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल इज फिक्स्ड। हम अज्यूम नहीं कर सकते कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल फिक्स है वहां पे, राइट। सो इन दिस द इंडिविजुअल वेरिएबल टिपिकली अज्यूम टू बिलोंग टू पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। पैरामीटर, हर इंडिविजुअल की एक पैरामीटर है ना, राइट। किसी का हाइट का पैरामीटर, किसी का इंटेलिजेंस का पैरामीटर, किसी का वेट का पैरामीटर है। सो हर पैरामीटर है। सो पर्टिकुलरली इंडिविजुअल वेरिएबल टिपिकली अज्यूम टू बिलोंग टू पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे जो वेरिएबल है, हम हाइट में वेरी करते हैं, वेट में वेरी करते हैं, इंटेलिजेंस में वेरी करते हैं, राइट। सो इंडिविजुअल वेरिएबल आर टिपिकली अज्यूम्ड टू बिलोंग टू पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो जो पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो चल रहा है, वो पर्टिकुलरली आपके इंडिविजुअल वेरिएबल्स को टिपिकली हम अज्यूम करते हैं, एंड assumptions about the type of connections among the variables are also made this technique to include. That means दो आपस में उनका जो कोऑर्डिनेशन है, द पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस को, जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, that they connect the variables in between, right? So उसके बेसिस पे हम नॉन पैरामीट्रिक रिग्रेशन पे जाते हैं। रिग्रेशन जब हम करते हैं तो हम प्रिडिक्शन करते हैं। Whenever you use the regression, that means we are going to predict something,
right? That you are predicting that praise is having a significant impact on your performance. You are going to predict this one and you are going to prove your prediction. That means regression you have to apply there. And if you have to study the relations that praise is significantly related to praise is significantly related to your performance, in that case you have to calculate the correlation. जब रिलेशन निकालना है तो कोरिलेशन यूज करेंगे, हम कोरिलेशन मेथड यूज करेंगे स्टैटिस्टिक्स में. और जब प्रेडिक्शन टेस्ट करते हैं हम स्टैटिस्टिकल मेथड के हिसाब से, हम प्रेडिक्शन को टेस्ट करते हैं तो हम एक रिग्रेशन स्टैटिस्टिकल मेथड है हमारा रिग्रेशन का, वो हम यूज करते हैं इसमें, राइट? सो दिस डिपेंड. जो आप फॉर एग्जांपल आप MA2 में जब आप एक अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट का एक टाइटल लेंगे, टाइटल के बेस पे पता चल जाता है कि आपने कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक इसमें यूज करनी है अपने रिजल्ट्स को एनालिसिस करने के लिए, राइट? टाइटल के बेस पे आप बता सकते हैं कि अगर आपने रिलेशनशिप वर्ड यूज किया है वहां पे कहीं, तो आप उसका कोरिलेशन निकालेंगे, राइट? प्रेडिक्शन से रिलेटेड कुछ अगर आपके स्टेटमेंट से रिलेटेड, उसका रिग्रेशन निकालेंगे, राइट? और आप एक टी टेस्ट और एक जेड टेस्ट, दो चीज होती है आपके स्टैट में. इसी में टी टेस्ट निकालते हैं हम, पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक जो आपका सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं. जब आप टी टेस्ट निकालते हैं उसमें पर्टिकुलर एक स्मॉल सैंपल और एक लार्ज सैंपल होता है, चीजें बराबर है. टी टेस्ट और जेड टेस्ट हम यूज करते हैं. टी टेस्ट आपका अबाउट स्मॉल सैंपल है, उस पे हम टी टेस्ट यूज करते हैं. लार्ज सैंपल है, उस पे हम जेड टेस्ट यूज करते हैं, पी वैल्यू निकालते हैं वहां पे. सो स्मॉल और लार्ज सैंपल का डिफरेंस कितना होगा? दैट मींस स्मॉल सैंपल शुड बी अराउंड लेस देन 30 पीपल इन वन ग्रुप. अगर आपने 30 लोगों के ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल रिसर्च करना, साइकोलॉजिकल रिसर्च करना है और उनके ऊपर आप टी टेस्ट लागू करेंगे, अगर मोर देन 30 अगर आपका सैंपल है तो उसके ऊपर आप जेड टेस्ट लागू करेंगे. ये स्टैटिस्टिकल रूल्स हैं आपके. जब आप कहां पे टी टेस्ट लागू करेंगे, कहां पे कोरिलेशन लागू करेंगे, कहां पे आप रिग्रेशन अप्लाई करेंगे, कहां पे आप जेड टेस्ट अप्लाई करेंगे, ये सब जो आपका जो आपका प्रोजेक्ट का जो टाइटल है, उस टाइटल के बेस पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप अनाउंस कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि वी आर गोइंग टू यूज दिस स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर एनालिसिस ऑफ आवर रिजल्ट. हेलो, Continue, sir. so the Z test called parametric statistical test. T टेस्ट को भी पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट बोलते हैं और जेड टेस्ट को भी हम पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट बोलते हैं. लेकिन जब टी टेस्ट को हम लागू करते हैं, जो मीन स्कोर का डिफरेंस, मीन वैल्यू निकालते हैं, मीन वैल्यू, मीन स्कोर का डिफरेंस निकालते हैं. सो देयर वी आर टू यूजिंग द टी टेस्ट. फॉर एग्जांपल, यू कुड यूज टी टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर राइटिंग एबिलिटी डिफर्स अमंग स्टूडेंट्स इन टू क्लासरूम. आप कंपैरिजन करें, राइट? कंपैरिजन करेंगे तो टी टेस्ट निकालेंगे. अगर कंपैरिजन करेंगे तो अनोवा लगाएंगे, राइट? सो यहां पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ राइटिंग स्टाइल ऑफ one class students to the another class. You are comparing, or you are comparing a discipline among one class students to the other class students. You are comparing there. If you are comparing, then we go for the T test there, right? So I'm telling you about the parametric test, and parametric test I'm discussing about the T test and the Z test, right? So T test हम कब लागू करते हैं, अनोवा कब लागू करते हैं? अनोवा का ANOVA कैपिटल में लिखा जाता है हमेशा. ये स्मॉल वर्ड में कभी नहीं लिखा जाएगा. अनोवा, अनोवा कैपिटल में लिखा जाएगा. और अनोवा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है हमारा विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन. सो
I'm giving the example of comparison. You are comparing a discipline of one class students to the other class students, then you go for your t-test, right? So जब आप कोई भी टेस्ट या कोई भी स्केल यूज करते हैं, तो there are 4 types of scale used for measurement. That is a nominal scale, ratio scale, interval scale और ordinal scale. ये आपके स्केल हैं जो हम यूज करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में. सो रेशियो स्केल, ऑर्डिनल स्केल, nominal scale or the interval scale. Nominal scale, particularly, I'm giving you one example. The population divided into males and female. Nomination करते हैं वहां पे हम जेंडर के बेस पे. नॉमिनल स्केल है हमारा. कोई ऑर्डर नहीं है कौन मेल है कौन फीमेल, ऑब्वियसली है. दैट इज ए नॉमिनल स्केल. You have to nominate, right? You have to nominate on the basis of gender, male and female. This is a nomination scale, nominal scale. Nominal scale or male or female, there is no order, there is no sequence of male is greater than the female is greater, whatever. So there is no sequence. So then we have interval scale. This is constant scale, but has no natural zero. डिफरेंस डू मेक सेंस. डिफरेंस जो होगा, फॉर एग्जांपल आपका इंटरवल स्केल है, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल दिस इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, राइट? डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन. और फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड्स वी आर टू असेस. सो वहां पे इंटरवल है टेम्परेचर में, कहीं पे 40 सेंटीग्रेड 40 टेम्परेचर, कहीं पे 30 टेम्परेचर है. सो दैट इज द इंटरवल बिटवीन वन टेम्परेचर टू अनदर टेम्परेचर, राइट? किसी फॉर एग्जांपल आईक्यू के बेस पे किसी का आईक्यू स्कोर 104 है, किसी का आईक्यू स्कोर 105 है. सो वहां पे इंटरवल आ रहा है. नॉमिनल स्केल लिया, मेल फीमेल लिया, और इंटरवल स्केल हम उसके ऊपर देख चेक करें तो दैट इज अ इंटरवल इन सेंस ऑफ देयर स्कोर्स ऑफ आईक्यू, स्कोर्स ऑफ देयर डिसिप्लिन एंड द स्कोर्स ऑफ देयर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल इन a particular surrounding. So इंटरवल स्केल particularly इसके 3 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं. पहला तो एक मेजरमेंट स्केल बहुत अच्छा है, और इसका जो इक्वल इंटरवल मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल इंटरवल होता है वो इज आल्सो अप्रिशिएबल, बट लैकिंग द रियल और एब्सोल्यूट जीरो. दैट मींस रियल और एब्सोल्यूट जीरो, दैट मींस नो वन कैन बी एट द जीरो लेवल ऑफ आईक्यू स्कोर. दे आर गेटिंग माय पॉइंट? देयर विल नॉट बी ए जीरो ऑन टेम्परेचर. फॉर एग्जाम्पल यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ जीरो के बाद माइनस में शुरू हो जाता है, राइट? -1, -2, -3, माइनस, दैट इज काउंटेबल. दैट मीन्स जीरो इज a freezing point. We cannot predict a normal, we cannot correlate a normal assessment analysis. We cannot compare the normal level at the zero. That means a freezing point, right? So that cannot be absolute 0 point. So male and female cannot be at 0 point if it is an interval scale. Then we have an ordinal scale. It is dealing with the interval of data. That means there is a specific sequence of the difference between the values. ऑर्डर है एक, यहाँ पे सीक्वेंस है. ऑर्डिनल वैल्यू मींस ऑर्डर है, सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ डिफरेंस है, सीक्वेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ वैल्यूज, राइट? सिविक सेंस इन टर्म्स ऑफ जेंडर. एक ऑर्डर मिलेगा आपको, डिग्री मिलेगी आपको,
ऑर्डर मिलेगा, सीक्वेंस मिलेगा कि सिविक सेंस इन टर्म्स ऑफ जेंडर, सिविक सेंस मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में ज्यादा होता है, यू विल गेट द ऑर्डर, यू गेट द सीक्वेंस, राइट? दैट मींस हाई, लो, एवरेज, राइट? उसके बाद हाई, लो, एवरेज और पुअर, बट अ वेरी पुअर, राइट? So these are the sequence, this is the order. High ethical values, poor ethical values, low ethical values, average ethical values, very high, very low, very poor, right? So these are significantly indicating the order, the sequence, and this is called a ordinal scale. जो टेस्ट आप यूज करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, अगर उसमें ऐसा कोई सीक्वेंस दिया हुआ है ऑन द लिकर्ट स्केल फॉर एग्जांपल, वहां पे हमारा एक ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस दिया होता है, दैट मींस वेरी हाई, हाई, देन लो, वेरी लो, ये एक सीक्वेंस है आपका वेरी हाई से वेरी लो तक. तो दिस इज कॉल्ड योर ऑर्डिनल स्केल, राइट? फॉर एग्जांपल देयर इज as one question, for example, would you like statistics? हमने क्वेश्चन पूछा, हमने आपको 5 ऑप्शन दे दिए, 1 से 5. एक है नेवर, उसके बाद रेयरली, नेवर, रेयरली, उसके बाद समटाइम, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली. These are the sequence. आपने 5 में से एक को टिक करना है. So this is called your ordinal scale. Clear? And then we have one ratio scale. Ratio scale, for example, height और weight. Ratio है हमारा, मेरा हाइट कितना, मेरा वेट कितना है. This is ratio in comparison to other one. Right? This is called your ratio weight. So these are, we have 5 scales we are to use in different terms, in different categories in our statistical data collection for analysis and interpretation and evaluation. Right? So इसके बाद assumptions हम अज्यूम करते हैं अबाउट पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए. फॉर एग्जांपल टीज टेस्ट और एफ टेस्ट का मैं एग्जांपल देता हूं. टीज टेस्ट और एफ टेस्ट के बेस पे हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, सैंपल को स्टडी करते हैं, सैंपल को ड्रॉन करते हैं जो एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. ये पहला अजम्पशन है. अगर आपने टी टेस्ट लागू करना है, पैरामीट्रिक टेस्ट लागू करने हैं, उसको पहला आप एज्यूम करके चलेंगे कि आप जो भी सैंपल ले रहे हैं, द सैंपल यू आर ड्रॉइंग, दे ड्रॉन, यू हैव ड्रॉन, दैट इज टू बी टोटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल, राइट? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल मींस you have taken the sample from the normal population. इसके बाद आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं उसका, राइट? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फॉर एग्जांपल कितने लोगों का वेट या कितने लोगों की प्रशंसा के बेस पे परफॉर्मेंस बढ़ी है, उनकी हम ग्रुपिंग करते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बढ़ने की परफॉर्मेंस, तो हमारी हाइपोथेसिस ट्रू प्रूव होती है, जो हम रिजेक्ट कर देते हैं. अगर वो नंबर कम मिल रहे हैं तो हमारी हाइपोथेसिस हमारी प्रूव नहीं होती है, उसको हम रिजेक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट करते. सो इसके बाद पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अजम्पशंस, वेरिएबल जो हम यूज करते हैं वो हम इंटरवल और रेशो स्केल यूजुअली हम यूज करते हैं. इंटरवल और रेशो स्केल, राइट? ऑर्डिनल स्केल यूजुअली हम स्केल यूज नहीं करते.
पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए यूजुअली वी यूज अवर इंटरवल एंड रेशियो स्केल, राइट। और जो हम वेरिएबल यूज करेंगे, पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में, वो वेरिएबल लेंगे जिनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और डिफरेंट वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन एक एग्जांपल हमारा वेरिएबल है। इस डिप्रेशन की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिप्रेशन की डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट वैल्यूज हैं, राइट। कल्चरल वैल्यूज है डिप्रेशन की, इकोनॉमिकल वैल्यूज है डिप्रेशन की, सोशल वैल्यूज है डिप्रेशन की, पर्सनल वैल्यूज है डिप्रेशन की, फिजिकल वैल्यूज है डिप्रेशन की। सो हम जो वेरिएबल यूज करेंगे पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में, वो वेरिएबल यूज करेंगे जिनकी भिन्न भिन्न तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स या वैल्यू होंगी, राइट। सो ऑटोमेटिकली हम कौन कौन से वेरिएबल यूज कर सकते हैं इसमें? वी कैन यूज ऑब्जर्वेशनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑब्जर्वेशनल इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। और सिलेक्शन जब हम करते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया सैंपल इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द सिलेक्शन ऑफ एनी अदर केस। जब आप सिलेक्शन करते हैं तो दैट डज नॉट मीन योर क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम अदर केसेस। आपके पास जो सैंपल है, प्रपोज्ड सैंपल है, that is to be criteria of your sample selection, right? So इसके बाद पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हम स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, SE निकालते हैं। सो इसके बेसिस पे स्टैंडर्ड एरर आपको ये बताता है कि पर्टिकुलर जो आपने सैंपल लिया है, टोटल सैंपल सपोज 100 का लिया है, उसमें कितनी गलतियां हुई होंगी। सैंपलिंग सिचुएशंस को, सैंपलिंग कंडीशंस से रिलेटेड कितनी गलतियां होंगी, वो एक स्टैंडर्ड एरर हम निकालते हैं। और स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, एस कैपिटल E M, और दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन। और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन, उसका जब हम निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन अंडर या ओवर अंडर रूट n, यह आपका एक फार्मूला है स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए। स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। जो सैंपल आपने लिया उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला होगा आपने, पहले मीन निकाला होगा, फिर मीडियन निकाला होगा, उसके बाद उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। जब आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन को जो सपोज 10 लोगों का मीन स्कोर है, 10 लोगों का, उसी के बेस पे आपने मीडियन निकाला है, उसी के बेस पे 10 लोगों का आपने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लिया। सो स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू को आपके, जब आप n को अंडर रूट निकाल के उसको डिवाइड कर देंगे, राइट, दैट मीन्स आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू आया है उसको डिवाइड करेंगे, n का अंडर रूट निकाल के, n 10 का अंडर रूट निकालेंगे, उस वैल्यू को फिर आप स्टैंडर्ड डिविएशन को डिवाइड कर देंगे। सो दैट मीन्स योर स्टैंडर्ड एरर। ये आप करके देखेंगे तो पता चलेगा आपको, कैलकुलेट करना पड़ेगा आप लोगों को सारा ये। ओनली देन इट कैन बी फिजिबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालते हैं। सो स्टैंडर्ड एरर निकालने के बाद वी मे हैव, सो हम यहां पे जब मीन डिफरेंस निकालते हैं, सिग्निफिकेंट मीन डिफरेंस, लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल, मैंने बोला आपको लार्ज सैंपल होगा, स्मॉल सैंपल होगा। स्मॉल सैंपल हम T निकालते हैं, लार्ज सैंपल हम Z स्कोर के लिए चले जाते हैं, राइट। जब हम लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल लेते हैं, वहां पे हमारे मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आते हैं, उसका हम स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, राइट। सो जब आप स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। और इसके लिए सिग्निफिकेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू डिपेंडेंट सैंपल, उसकी T निकालनी है आपको। T निकालने के लिए फॉर्मूला होगा M1 प्लस M2, T इज इक्वल टू M1 प्लस M2, राइट।
or standard error of initial test of mean, right? Standard error of initial test of mean, then standard error of initial test of mean. Standard error of initial test of mean and standard error of final test of mean. ये बहुत anyone can suggest how we can go for this calculation. On this, I don't have blackboard and nothing. I can go only theoretical only, and this is a formula based. So how we can go to calculate the formula? Suppose मैंने calculate correlation निकालना, तो how we can calculate the correlation of the mobile? या तो आप एक statistical value ले लो. Excuse me, sir. Shall I suggest something? Hello. लेकिन स्टेप फॉर स्टेप हम उसकी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोरिलेशन कैसे निकालते हैं. या तो आप प्रैक्टिस कर लो अपने पेन और पेपर लेके, या मैं थ्योरेटिकल ऐसे बताता रहूंगा, आप नोट करते रहेंगे. हेलो. हेलो. यस. सर, एक पेपर के ऊपर जैसे अगर आप थोड़ा उसको बिग बिग लिख लें और उसके बाद वो शेयर हो जाए, एंड देन वी कैन नोट इट डाउन ऑन आवर ओन, एंड नेक्स्ट क्लास में हम वो डिस्कस कर सकें. मैं तभी कह रहा हूँ, या तो आप नोट डाउन करते रहें. हाँ जी सर. हेलो. मेरी जो अजम्पशंस है, आज स्टैटिस्टिकल पार्ट कराते हुए, आई एम अज्यूमिंग पेन लेके नहीं बैठते हुए, कहानी से सुनते हैं बस. दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग. कागज पेन लेके बैठेंगे, कहानी से सुनेंगे तो बेटर रहेगा, नहीं सुनेंगे तो इसको स्टैटिस्टिकल हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कैसे इसको कैलकुलेट करें. Sir, PowerPoint presentations can also help. PowerPoint presentations can also help, sir. फिनिश करो एक बार क्लास को, हम क्वेश्चन आंसर में जाएंगे अभी सर. Okay, sir. रिकॉर्डिंग बंद करो, हम क्वेश्चन आंसर में जाएंगे अब. सो presentation, PowerPoint presentation, automatically I'll go for PowerPoint presentation. But in PowerPoint presentation, how we solve the questions? Hello. Sir, that is not possible. We can see that is not possible. Yeah, with that's why PowerPoint I'm presentation. how we go for this all calculations in our this ODL mode. ये theoretically तो इट्स गुड. सो theoretically ही मैं कवर कर सकता हूँ आपके लिए ये, एंड स्टैटिस्टिकली आप क्लास के बाद बैठ जाए, उसको सोल्व करें, और सॉल्यूशन में जहां जहां आपको प्रॉब्लम आती है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लें. Yes, sir. इट इज ओनली पॉसिबल. Yes, sir. आप बोलिए आपकी क्या क्या क्वेश्चंस हैं. पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक जो टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें स्मॉल सैंपल उसका मीन वेरिएशन निकालते हैं, लार्ज सैंपल उसका भी मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं. वेरिएशन और प्रोपोर्शन में फर्क है, राइट. सो पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में डिफरेंस क्या है? पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है? If the information about the population is completely known by means of its parameter, then statistical test is called parametric test. What is parametric test? If the information about the population is completely known by means of its parameter, अगर जो सैंपल आप ले रहे हैं उनके मीन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सब पता है, तो उसको बोलते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट. इसमें आपका टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, ANOVA ये हम यूज कर रहे हैं. नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है? इफ देयर इज नो नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन और पैरामीटर्स, but still it's required to test the hypothesis of the population, that is called non-parametric test. हमें स्टडी करना है कोरोना का मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है. हमने कोरोना के कोई पैरामीटर नहीं पता, राइट. सो इसमें आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पे जाएंगे.
मेंटल हेल्थ के पैरामीटर को पता है हमने, राइट. When you are to completely known about the characteristics of the means of parameters you are taken, then you go for the parametric. When you don't have any parameter, non-parameter, that means no characteristics, no parameter of the sample you are taken or the variable you are taken, then we go for the non-parametric test. Non-parametric test में मैन विटनी टेस्ट होता है, सॉरी रैंक टेस्ट होता है, और क्रूस्कल वैलिस टेस्ट होता है हमारा. रैंक सम टेस्ट कोरिलेशन आ जाता है ऑलमोस्ट इसमें हमारा नॉन पैरामीट्रिक में, और पैरामीट्रिक में टी टेस्ट आ जाता है हमारा. इनमें डिफरेंस क्या होता है? पैरामीट्रिक में इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन इज कंप्लीटली नोन. पैरामीट्रिक में, नॉन पैरामीट्रिक में नो इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन इज अवेलेबल. द पॉपुलेशन हियर मींस द सैंपल. सैंपल की विशेषताएं हमें पैरामीट्रिक में पता होती है, नॉन पैरामीट्रिक में पता नहीं होती. उसके बाद स्पेसिफिक assumptions are made regarding the population. Sorry, population की characteristics पता है हमें. You can make a specific assumptions, specific hypothesis based on your characteristics. Just a minute. So that means you have the characteristics of your parameters of the population you are studying, and when you don't have any characteristics or parameters you are studying, that means non-parametric. Null hypothesis is based on parameters of the population you are distributed. That is a parametric test. Null hypothesis parametric test में बताएंगे. The null hypothesis is free from the parameters. Null hypothesis बनाएंगे parameters से related. That is a parametric test. But non-parametric में जो characteristics है उसका पता ही नहीं, उनसे संबंधित आप hypothesis नहीं बनाएंगे. Right? So इसके बाद what are the advantages of parametric test or non-parametric? So the advantages of non-parametric test are, it is very simple and easy to understand. It will not involve complicated sampling theory, right? No assumptions is made regarding the parent population. Parent population, that means adolescents जो है, adolescents के बारे में, that is the parent population. No assumptions made regarding the parent population. जो जनरल पॉपुलेशन है नॉन पैरामीट्रिक में, उसके ऊपर आप लोग कोई assumptions नहीं कर सकते. पर्टिकुलर जो आपने सैंपल लिया है एडोलेसेंट्स का, उस पॉपुलेशन का, उसी के बारे में आप assumptions बना सकते हैं. ये अकेला नॉमिनल स्केल के लिए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लागू होते हैं, नॉमिनल स्केल पे. जैसे जेंडर नॉमिनल स्केल है हमारा ना, जेंडर मेल एंड फीमेल, राइट? अमीर और गरीब नॉमिनल स्केल है हमारे. इंटेलिजेंट नॉन इंटेलिजेंट नॉमिनल स्केल है हमारा, फॉर एग्जांपल. यहाँ पे इनको मापना है आपने, तो आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पे जाएंगे आप लोग. इसके बाद disadvantages of non-parametric test. It can be applied only for nominal or ordinal scale. सिर्फ 2 पे लागू हो सकता, बाकियों पे नहीं होगा. 4 स्केल बोला था ना मैंने, 2 पे लागू होगा. So non-parametric methods are not so different as of पैरामीट्रिक. पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में सिर्फ बहुत ज्यादा फर्क नहीं, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरामीटर का फर्क है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल का फर्क है. द रेस्ट देयर इज नो डिफरेंस. नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अवेलेबल फॉर टेस्टिंग द इंटरेक्शन इन एनालिसिस ऑफ वेरिएबल वेरियस मॉडल. मान लो आपने 3 वेरिएबल स्टडी किया, तीनों वेरिएबल की इंटरेक्शन निकालने के लिए आपको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लागू करेंगे. एक ही प्रोजेक्ट में
आप पैरामीट्रिक टेस्ट भी लागू कर सकते हैं और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट भी लागू कर सकते हैं। मान लो एक पैरामीट्रिक टेस्ट में आपने टी टेस्ट निकाल दिया, राइट। जब आपने इंटरेक्शन निकालना है, टी टेस्ट निकाल के तो आपने कंपैरिजन निकाल दिया ना, राइट। जब आपने इंटरेक्शन निकालना है कि मेल और फीमेल का इंटरेक्शन क्या हुआ और उसके बेसिस पे उसका आउटकम क्या रहा है, सो आपने नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लागू करना पड़ेगा वहां पे, दैट मीन्स कोरिलेशन निकालना पड़ेगा वहां पे, राइट। सो एक ही प्रोजेक्ट में नॉन पैरामीट्रिक और पैरामीट्रिक दोनों टेस्ट लगा सकते हैं आप प्रोजेक्ट जब लिखेंगे आप लोग। सो टी टेस्ट जब आप करते हैं ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 20 जब आपका सैंपल होगा तो टी टेस्ट ले लेंगे आप लोग, राइट। स्मॉल टी टेस्ट, ईच ग्रुप शुड हैव एटलीस्ट मिनिमम 15 पीपल, राइट। सो वन वे अनोवा, अनोवा जब हम लागू करते हैं, अनोवा बोलते ANOVA, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा, कि कितना वेरिएशंस है। कंपैरिजन किया ना हमने पॉपुलेशन स्मॉल और लार्ज सैंपल के बेस पे, हमने अनोवा और टी टेस्ट लगाया ना हमने। सो अनोवा जब टी टेस्ट लगा के कंपैरिजन कर दिया, लेकिन कंपैरिजन में वेरिएशन निकालना पड़ेगा, कितना वेरिएशन है, मेल एंड फीमेल आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट ऑन इंटेलिजेंस। हमने कंपैरिजन कर दिया कि हाँ मेल और फीमेल इंटेलिजेंस के लेवल पे डिफरेंट है दोनों, लेकिन कितनी वेरिएशन है, कितना मेल इंटेलिजेंट है या फीमेल इंटेलिजेंट है, वो वेरिएशन जब निकाले एग्जैक्ट वेरिएशन, टी टेस्ट तो सिंपल कंपैरिजन देगा आपको, हाँ मेल और फीमेल में दोनों इंटेलिजेंट में कितना फर्क है, जस्ट ए कंपैरिजन ओनली, डिग्री नहीं देगा। डिग्री ऑफ वेरिएंस जब आप निकालेंगे तो आप अनोवा टेस्ट आपको यूज करना पड़ेगा, राइट। सो इफ यू हैव 2 से 9 ग्रुप अगर आपके एक हर एक ग्रुप में है और ग्रेटर देन आपका 15, इफ यू हैव 2 to 9 ग्रुप्स, 2 से 9 ग्रुप है आपके पास और हर ग्रुप में मोर देन 15 लोग हैं, और इफ यू हैव 10 से 12 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में आप ग्रेटर देन 20 लोग हैं, दोनों के लिए आप वन वे अनोवा में जाएंगे, राइट। सो आपका वन वे अनोवा और टू वे अनोवा दो चीज होती है। वन वे अनोवा, टू वे अनोवा, जब जेड टेस्ट लगाते हैं लार्ज सैंपल पे जेड टेस्ट लगाते हैं, स्मॉल सैंपल पे टी टेस्ट लगाते हैं। लार्ज सैंपल जब ग्रेटर देन नंबर ऑफ सैंपल है इज मोर देन 30, वी गो फॉर जेड टेस्ट, एंड लेस देन 30 वी गो फॉर योर आपका टी टेस्ट फॉर एग्जांपल, राइट। वन वे सैंपल, टू वे सैंपल, आपका एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। सो आप बताइए, आप क्वेश्चन पूछिए, आप जो क्वेश्चन पूछना आप। हेलो हेलो सर क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ, क्वेश्चन। सर एक्चुअली सर ऐसा है कि जैसे आज हमने आपका टॉपिक सुना, तो सर हमें गो थ्रू होने से, जैसे हमारा रिटन मटेरियल है उसमें से कुछ टाइम चाहिए होता है, तो सर जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उससे पहले अगर हमारी प्रॉब्लम्स ली जाए तो हम अपने क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से रख सकते हैं। सर अभी आपका टॉपिक हमने लेक्चर सुना, तो अभी तो गो थ्रू होने में भी टाइम लगेगा सर। दैट्स इट सर। सो इसमें हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस क्या है, हमारी रिजर्वेशन क्या है। वी हैव 4 मॉड्यूल 4 क्लास। फॉर एग्जांपल हर एक क्लास, एक दिन एक मॉड्यूल हमने डिस्कस करना है। सपोज आज हमने आपको पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक के बारे में बताया, आज आप घर जाके इसको पढ़ेंगे, कल फिर इसको डिस्कस करेंगे तो हमारा सेकंड मॉड्यूल रह जाएगा। कल वाला परसों डिस्कस करेंगे तो फिर हमारा थर्ड मॉड्यूल रह जाएगा। जो 4 दिन में हम एक दिन पढ़ाएं और दूसरे दिन हम उसकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, तो ये हमारी प्रॉब्लम बनी रहेगी, हम मॉडल को कवर नहीं कर पाएंगे, ये बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। वी हैव पॉसिटी ऑफ टाइम। अब आप देख लो आपने कैसे मैनेज करना है, दिस अप टू यू पीपल। आप करना तो आपने है, वी आर जस्ट ब्रशिंग ओनली। एक्चुअल काम तो आप करेंगे, और एक्चुअल काम करेंगे, जो डिफिकल्टीज आएगी नोट डाउन। हो सकता है 5 क्लास के बाद हमें अलाउड नहीं ऑफिशियली, वी कैन नॉट गो फॉर दैट वन, राइट। हाँ,
ईमेल पे हम ऐसे कैसे टेलीफोनिकली हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, बट इट नॉट बी ऑन दिस मोड ऑफ प्रेजेंटेशन वी आर गोइंग। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। एक आप लोग ना एक सिग्निफिकेंट लेवल चेक करने के लिए कोई एक स्टैटिस्टिक की कोई किसी किताब यूज कर रहे हैं आप लोग? सर अभी तो हम जो स्टडी मटेरियल हमें जो अवेलेबल है वही यूज कर रहे हैं। नहीं, एक आप एडिशनल बुक ले लें और उस बुक में आपके इन किताबों में मुझे लगता है सिग्निफिकेंट लेवल चेक करने के लिए टेबल नहीं दी हुई, राइट? सिग्निफिकेंट जब आप टी टेस्ट निकालेंगे, अनोवा निकालेंगे, कोरिलेशन निकालेंगे, आपने सवाल तो निकाल दिया, जब तक उसके इंटरप्रिटेशन सिग्निफिकेंट लेवल निकाल करके चेक नहीं करेंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। कि आपका जो रिजल्ट आया है वो कितने पॉइंट पे सिग्निफिकेंट है, 0.01 पे, 0.05 पे, कहाँ पे सिग्निफिकेंट है, तो उसका मीनिंग होता है कि वो जब तक आपने सिग्निफिकेंट लेवल नहीं देंगे, जब तक आपका इसका पूरे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो वो सिग्निफिकेंट टेबल देखने के लिए आप एक बुक ले लो स्टैटिस्टिक्स की, और हेनरी गैरेट की एक बुक आती है, नाम दोबारा। हाँ, HEN फॉर नेस्ट, RY, हेनरी गैरेट, हेनरी। GARRET। हेनरी ओके सर। गैरेट की से वन ऑफ द वंडरफुल बुक, राइट? वो बुक ले लो। उस बुक के लास्ट में टेबल दी होंगी, उन टेबल के बेस पे हमने चेक करना है कि आपका ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ टी टेस्ट, अनोवा, कोरिलेशन, FZ टेस्ट अगर आपका सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ओनली देन आपको पता चल पाएगा। अदरवाइज सवाल किस आपका फॉर्मूला याद किया, आपने सोल्व कर दिया, और सिग्निफिकेंट है या नहीं वो आपने इंटरप्रिटेशन नहीं दिया, तो you cannot get the full marks of the question। ठीक है जी, और बोलिए आप। ओके सर। कल कोशिश करूंगा इसका कुछ पोर्शन दोबारा से थोड़ा सा समझाऊं आपको मैं। एक आप टी टेस्ट निकालने का एक प्रैक्टिस करके आना, हम टी टेस्ट को कैसे निकालते हैं, कोरिलेशन को कैसे निकालते हैं, कोरिलेशन टी टेस्ट की प्रैक्टिस करके आना कल। हेलो हेलो, हेलो सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर, आप सुन लोग रहे सब कल टी टेस्ट और कोरिलेशन की प्रैक्टिस करके आना। टी टेस्ट और कोरिलेशन का लेकर हम कोशिश करेंगे, निकाल के देखेंगे। ओके सर। सर I अगर आप will एक स्पेसिफिक एक टेस्ट दे सकते हैं हमें, एक जैसे कोई क्वेश्चन दे सकते हैं हमारे स्टडी मटेरियल में से, तो हम सबके लिए यूनिफॉर्म रहेगा ये करने के लिए। स्टडी मटेरियल में से मेरे पास टेस्ट नहीं है, मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखवा सकता हूँ, लिखो आप। सर लिख रहे हैं। 1 से 5 तक हमारे पास सीरियल नंबर 1 to 5 से ये स्टूडेंट्स हमारे, पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स की, सैंपल है स्टूडेंट्स हमारा 1 to 5, 1 2 3 4 5 लिख लो आप। हेलो, जी सर लिख रहे हैं हम, आप बताते जाइए। ओके। उनको हमने 2 स्कोर निकाले हैं स्टूडेंट्स के, एक प्री टेस्ट एक पोस्ट टेस्ट। जीरो आपके सीरियल नंबर 1 to 5 के सामने प्री टेस्ट के स्कोर लिखेंगे, 1 के सामने 0, 2 के सामने 2, 3 के सामने 1, 4 के सामने 2, 5 के सामने 1। सर रिपीट करना प्लीज। सर 1 के सामने 0 2 1 2, प्री टेस्ट स्कोर बोल रहा हूँ, 1 2 1 प्री टेस्ट। फिर लिखेंगे आप पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट रिपीट कर रहे हैं 0 2 1 2 1, ये कोरस्पॉन्डिंग सीरियल नंबर 1 to 5 के सामने लिख देंगे आप। हो गया? ओके डन? जी सर। जी हाँ, सर। इसके बाद Yes. पोस्ट स्कोर लिखेंगे, पोस्ट स्कोर। प्री टेस्ट है और पोस्ट टेस्ट है हमारा। पोस्ट टेस्ट लिखेंगे 5 5 8 8 5 5 8 8 5 7, राइट? ठीक है। अब आपने ये स्कोर आपके पास हमने इसका टी टेस्ट निकालना है। सिंपल बता रहा हूं, इसका आप क्या करेंगे, टी टेस्ट कैसे निकालेंगे।
वो आप चेक करके आएंगे आपको। ओके ठीक है सर जी? सिर्फ टी टेस्ट है, कोरिलेशन नहीं है इसका, सिर्फ टी टेस्ट। इसका कोरिलेशन निकाल देना, इसका भी कोरिलेशन 2 स्कोर है ना आपके। जी सर, जी हाँ सर। जी ये आप हाँ इसको जी, मान हाँ लेना जी। इंटेलिजेंस टेस्ट की प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट है। हाँ 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 जी। रैंक कर देना, रैंक जी यस सर। सर। कोरिलेशन ओके सर। रैंक डिफरेंस मेथड से निकालेंगे आप। सर रैंक मेथड से निकालना है कि हाँ, पियर्सन मेथड भी है? स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। स्पीयरमैन रैंक से। ओके चेयरमैन ठीक नहीं, है सर, स्पीयरमैन, स्पीयरमैन ये सर। SPEAR। ओके स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। ओके सर। ये दोनों चीज आप कंप्यूट करके लेके आएंगे, कैलकुलेट करके लेके आएंगे, फिर हम इसको थोड़ी सी देर के लिए 10-15 मिनट्स पे लगाएंगे, फिर मॉड्यूल 2 डिस्कस करेंगे हम लोग। सर टुमारो सेम टाइमिंग पे क्लास है हमारी? सेम टाइमिंग पे। ओके सर। अब लोग बहुत कम आते हैं मॉर्निंग में, रीजन पता नहीं क्या कारण है। सर आज सुबह तो कनेक्ट ही नहीं हुआ है। हाँ जी, सुबह सर कनेक्ट ही नहीं हुआ है। मैंने बहुत बार ट्राई किया, सुबह कनेक्ट ही नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं आप? अभी सर लिंक से कनेक्ट नहीं हो रहा। सुबह लिंक हमारा तो कनेक्ट हुआ है, आप बैठे हैं यार, लिंक पे ही बैठे हम। नहीं पर सर सुबह कनेक्ट नहीं हुआ, वो तो अभी मैसेज जैसे डाला व्हाट्सएप पे, तब हम दोबारा इसका ज्वाइन किया, नहीं तो सुबह कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। आपका नेट पर प्रॉब्लम है भाई, ये अब सभी बैठे हैं हम लोग। नहीं सर मेरा अकेले का मैसेज करना होता तो ठीक है ना, काफी जनों का सुबह कनेक्ट नहीं हो रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप में आप देखा हो, काफी जनों ने डाला नहीं हुआ। कर सकते, वी कैन नॉट हेल्प यू, वी आर ऑनलाइन। सर कल के लिए टॉपिक क्या होगा? मॉड्यूल मॉडल 2, मॉडल नहीं, मॉड्यूल 2। हेलो, यस। कल एक मॉड्यूल 1 को रिपीट करेंगे, मॉड्यूल 2 दोबारा शुरू करेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू। मॉड्यूल 2 बाद में। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मुकेश भाई।